Welcome back, students of class 10. Hope you have enjoyed your short summer vacation. You should have used this short summer vacation to complete the different fair copies that are remaining. Please do that, okay? I am sure that the whatever question answers that I have given you, write down in your fair copy. You can use the other company fair copies also during this time, and leave some pages, leave some empty pages, 3-4 empty pages for the question, the short answer type and the long answer type question. Leave those pages empty, because whenever school opens we are going to do those chapters also. Now before our vacation we were going through the chapter of coordination and control, and we had entered the how this is done in humans. We had learned about the cell, the basic nerve cell that is present in humans and animals. Now, today we are going to take a more detailed look at the overall system that is made by these cells. The cells of the nervous system, the nerve cells, come together to make different systems that help to control and coordinate our body's functions. So, in the human body, there are 3 different systems that work to make the coordination and control happen. The first is the central nervous system, then second is peripheral nervous system, and third is autonomic nervous system. We are going to learn about the central nervous system and what are the different parts of the central nervous system today. Okay? So first, the obvious and the most important organ of the central nervous system is the brain. The brain is the main organ of our central nervous system. The central nervous system's main organ, brain, is hidden or is stored safely within a box made up of bone tissue which we call the cranium. कि ये एक bone tissue से बना हुआ एक जगह के अंदर रहता है, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर के अंदर रहता है, जिसको हम कहते हैं क्रेनियम. ये क्रेनियम एक्चुअली एक बोन से नहीं बना है. द क्रेनियम इज नॉट मेड अप ऑफ सिंगल बोन. It is actually a fusion of different bones that fuse together to make this box happen. If you look at a skull of a human being, कोई human being का skull अगर आप देखते हैं या उसका फोटो देखते हैं, तो you will see that there are very thin fine lines in running across the different parts of the skull. That is where the bones join to make this box. Okay? Inside the cranium के अंदर में the brain is covered from all sides by an outer thin layer of tissue which is called the meninges. meninges नाम का एक टिश्यू होता है जो चारों ओर से ब्रेन को घेर के रखता है. Okay? This acts in protection of the brain. This helps to protect the brain. The color of the meninges is grey. ये meninges का कलर जो होता है वो ग्रे कलर का होता है. Okay, that is why from outside the brain has a grayish or whitish color. Now because of the blood supply it may appear pink sometimes. Blood में घुलने से उसको पिंक हो जाता है, थोड़ा पिंक दिखता है. Now between the meninges and the cranium और meninges के बीच में और एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर रहता है ऑफ अ जेली लाइक सब्सटेंस. देयर इज अ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन बिटवीन द क्रेनियम एंड द मेनिंजेस. क्रेनियम और मेनिंजेस के बीच में एक फ्लूइड वाला सब्सटेंस रहता है जो एक और लेयर देता है प्रोटेक्शन के लिए. दिस फ्लूइड इज कॉल्ड द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और CSF. ये जो फ्लूइड रहता है इसको कहा जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और CSF. दिस इज मेड मोस्टली फ्रॉम द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड. CSF इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्लाज्मा. जो ब्लड प्लाज्मा होता है ना, वही चीज ब्रेन में आके फिल्टर्ड होके CSF बनता है.
and it does a lot of function. It is also works like a connective tissue similar to blood and carries different signals. The neurotransmitter के बारे में जो हम लोग बात किए थे वो भी कैरी होता है CSF से, और CSF का काम होता है यही इसको कैरी करना और प्रोटेक्शन भी देना. ओके, सो now we are going to look at the different parts that are present in the human brain. The human brain and all vertebrate brains, हर जो vertebrate होते हैं उन लोगों को ब्रेन को सामने के ओर से पीछे तक, starting from the front going towards back, 3 हिस्सों में बांटा जाता है. They are divided into 3 parts. The forebrain, fore मतलब सामने, सामने वाला brain. The midbrain, that is the medium brain, and then the posterior brain, the पीछे वाला brain. तो ये 3 पार्ट हो गए. ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फोरब्रेन और द सेरिब्रम. ध्यान रखिए ये है सेरिब्रम. ओके, नाउ the forebrain is in humans, the forebrain is the part that we see in the most pictures and most drawing of the brain. सेरिब्रम होता है वो सामने वाला जो फुला हुआ पार्ट दिखता है, दैट इज द एंटायर फोरब्रेन. द सेरिब्रम इज मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू, नर्व से बना हुआ है, एंड दैट नर्वस टिश्यू गेट्स फोल्डेड इनसाइड. वो बहुत सारा फोल्ड लेके उसके अंदर जो फोल्ड दिखते हैं, दैट फोल्ड इज देयर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए उसको बार बार ऐसे फोल्ड कर दिया जाता है ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा नर्व्स को एक्यूमुलेट किया जाए, कि ज्यादा से ज्यादा नर्व उस सरफेस में रह के काम कर सकते हैं. एंड दिस हेल्प्स द ब्रेन टू फंक्शन. द फोरब्रेन इज डिवाइजिबल इनटू 2 लोब्स. वो 2 लोब में डिवाइजिबल है, जिन लोगों को कहा जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स. इन लोगों को कहा जाता है 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. वी हैव राइट हेमिस्फीयर, एक रहता है राइट हेमिस्फीयर जो राइट साइड में होता है, एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर. दे कम टुगेदर टू मेक द टोटल सेरिब्रल रीजन. नाउ दिस पार्ट ऑल्सो हैज द सेंटर फॉर स्मेल. हम लोगों का फोरब्रेन के अंदर हम लोग जो इतना स्मेल कर लेते हैं, जितना भी करते हैं, वो रहता है फोरब्रेन में. दैट इज कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी लोब. इस सेंटर को कहा जाता है ऑल्फैक्टरी लोब. द ऑल्फैक्टरी लोब फंक्शंस इन कैचिंग द स्मेल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. आप अगर एक ह्यूमन का ब्रेन और एक डॉग का ब्रेन देखेंगे तो आपको डिफरेंस क्लियरली दिखेगा. ह्यूमंस में ऑल्फैक्टरी लोब इतना छोटा होता है कि वो सेरिब्रम के नीचे थोड़ा बाहर से दिखता ही नहीं है. लेकिन वही अगर आप एक डॉग का ब्रेन देखेंगे तो वहां पे सेरिब्रम छोटा होता है, लेकिन वो जो ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं वो इतने बड़े बड़े होते हैं. द सेरिब्रम कंट्रोल्स आवर थिंकिंग. जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के बारे में बात हो रहा था, इट कंट्रोल्स आवर थिंकिंग एंड आवर डिफरेंट एबिलिटीज. ये जो पढ़ने का एबिलिटी है, ये जो अलग अलग चीजों को देखने का, समझने का, ये सब एबिलिटी आता है सेरिब्रम से. ओके, दैट इज द फंक्शन ऑफ द फोरब्रेन. द फोरब्रेन ऑल्सो, अब फोरब्रेन को अगर ऊपर से नीचे आप देखेंगे तो इसको 3 डिविजन किया जा सकता है. फर्स्ट रहता है प्रोसेंसेफलन जो है ऊपर वाला, फिर रहता है मिडिल वाला मेटेनसेफलन, और सबसे नीचे वाला पार्ट को कहा जाता है डायनसेफलन. डायनसेफलन से ही निकलता है आप लोगों का पिट्यूटरी ग्लैंड. डायनसेफलन प्लेज अ मेजर कनेक्टिव राउट बिटवीन द प्रोसेंसेफलन एंड द मेटेनसेफलन टू द पिट्यूटरी. प्रोसेंसेफलन का काम रहता है एनवायरमेंटल कंडीशन को जज करना, और डायनसेफलन भी थोड़ा करता है एनवायरमेंटल कंडीशन को जज करने का काम. आफ्टर दैट इट सेंड्स द सिग्नल टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, जहां पे एनवायरमेंटल सिग्नल को देखते हुए अलग अलग हार्मोन्स रिलीज किया जाता है. सो दिस इज हाउ द ब्रेन हैपेंस. इसके साथ साथ डायनसेफलन इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ हंगर एंड थर्स्ट. जो हम लोग भूख फील कर सकते हैं,
थर्स्ट फील कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द डायनसेफेलिन. when diencephalin feels the hunger, that message is also relayed to the pituitary gland. वो मैसेज भी पिट्यूटरी को भेजा जाता है. then the pituitary releases hormones that causes us to want to eat. ओके जो हम लोग को खाने का इच्छा होता है, that is also controlled by the pituitary gland. The second part is the midbrain. The midbrain contains the major part of the midbrain is the optic lobe. जो हम लोगों का आंख से जो विजुअल इंफॉर्मेशन आता है, वो दैट विजुअल इंफॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग होता है जिस सेंटर में, उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिक लोब. And in the optic lobe, this processing gets happen, and it is like two pairs of oval shaped bodies that is located below the cerebrum. cerebrum के नीचे रहता है ह्यूमंस में, तो आपको ह्यूमंस में दिखता नहीं है, लेकिन बाकी सारे एनिमल्स में ये बहुत बड़ा रहता है और ये बहुत क्लियरली दिखता है. Third part of the brain structure is the hindbrain, or what we call the cerebellum. This is different from cerebrum. ये cerebrum नहीं है, ये है cerebellum. Okay, तो cerebellum में there are three parts, that is the cerebellum, the pons and the medulla oblongata. There are three parts, the cerebellum, the pons and medulla oblongata. ये हर तीनों का अलग अलग फंक्शन होता है. सबसे पहले cerebellum is involved in the posture and the body coordination. मैं बैठ के यहाँ पे सीधा बैठा हूँ, राइट. मैं बैठते बैठते ऐसे तो हिल नहीं जा रहा हूँ, या फिर ऐसे अचानक से गिर नहीं जाता हूँ. कभी कभी आप देखे होंगे कि लोग ऐसे ही चलते चलते अचानक गिर जाते हैं, राइट. दे लूज देयर बैलेंस because that is a problem of the cerebellum. The cerebellum controls our body's balance and our body's posture. कि मुझे पता है कि मेरा बॉडी ऐसा स्ट्रेट रहना चाहिए, ये कंट्रोल होता है हमारा हाइंड ब्रेन यानी सेरिबेलम से. इसके साथ साथ सेरिबेलम इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन सर्टेन वॉलेंटरी एक्शंस. कुछ वॉलेंटरी एक्शंस के साथ भी सेरिबेलम जुड़ा हुआ रहता है. ओके, बट the major type of function that happens in the hindbrain is the involuntary action, which is the controlled by the medulla oblongata. Medulla oblongata is the connection point between the spinal cord and the brain. यही वो जगह है जहां पे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन एक दूसरे से जुड़ते हैं. This part is called the medulla oblongata. Medulla oblongata is key. It is most important function is in involuntary activities. जो हम लोगों का involuntary muscle activity होता है, आप लोग involuntary muscles के बारे में सुने हैं, तो उसका कंट्रोल होता है medulla oblongata के साथ. Involuntary activities like coughing, खांसना, छींकना, sneezing, ये सब, ये जितना भी involuntary activities है, these are controlled by the breathing. They are all controlled by from the medulla oblongata. ये एक important part है जो which also connects the brain to the spinal cord. Spinal cord के बारे में हम अगले दिन पढ़ेंगे. ये दो connection करता है. Another part of the important part of the hindbrain is the pons. पॉन्स का काम क्या होता है? पॉन्स एक्ट्स एज ए कनेक्टिंग सेंटर बिटवीन द हाइंड ब्रेन एंड द फोर ब्रेन. हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच, मतलब सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच जो कंट्रोलिंग सेंटर रहता है वो रहता है पॉन्स. बिकॉज सम ऑफ द थिंग्स लाइक लेट्स से कि मैं गिर रहा हूं, अब गिरने को रुकने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे हाथ को आगे करना है, राइट. तो ये इंफॉर्मेशन कौन लेता है? ये डिसीजन लेता है फोर ब्रेन. लेकिन मैं गिर रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन कौन लेता है? लेता है हमारा हाइंड ब्रेन. तो हाइंड ब्रेन से ये जो इंफॉर्मेशन फोर ब्रेन में गया, अब कौन सा इंफॉर्मेशन डालना चाहिए और कौन सा नहीं डालना चाहिए, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द पॉन्स. ओके,
So hope you understand this section. Read this section very carefully. There is lot of short question that might come from this section, and if you have any question, feel free to ask.